My name is Himanshi Trivedi and I have secured All India rank 4th in Indian Statistical Services. And under Delhi Knowledge Tracks initiative of Share Your Time for Nation Building, I am going to teach you chapter number 14 of class 10th maths, that is statistics. And in this chapter, we have to study about data, statistics, collection of data, presentation of data, graphical representation of data and measure of central tendency. So now let us start with data. See, we are surrounded by data. We come across various kind of information in the form of facts, numerical figures, in the form of tables, graphs. So there are various kind of sources of these data. Some we get in the from the television, some we get from various kinds of magazine, from newspaper to radio. Even in our general communication also, we unintentionally make use of so much amount of data. जैसे कि अगर हम आईपीएल या क्रिकेट की बात करें तो जो हम जनरल बैटिंग या बॉलिंग स्कोर्स मेजर करते हैं या दो टीम्स के बिटवीन कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रन रेट एंड एवरीथिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ डेटा. यू मस्ट हैव हर्ड योर एल्डर्स स्पीकिंग अबाउट the variation, that is utar chadhav in the prices of gold and petrol. That is a data. You heard them talking about महंगाई is generally what? Change in the price of one commodity from previous time to present time, means there is a change in a number. So that is also a data. अगर जैसे आप किसी एग्जाम की बात करें, आप जैसे आगे जाके नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, है ना. सो ये जो एग्जाम्स होते हैं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए, इतने लोगों ने उसको एग्जाम दिया, इतने लोग पास हुए, इतने लोग फेल हुए. तो ये जो इतने लोग, ये जो नंबर, न्यूमेरिकल फिगर दैट वी गेट, दैट इज अ डेटा. इनफैक्ट ये जो अभी कोरोना वायरस पैंडमिक चल रहा है, इसमें जितने नंबर ऑफ न्यू केसेस आए, कितने लोग जो पहले इन्फेक्टेड थे वो अब रिकवर हो गए, एक कोई पर्टिकुलर सिम्टम कितने लोगों में देखा गया, दिस ऑल इज डेटा. इनफैक्ट जो स्कूल में आप लोगों की हाइट और वेट मेजर की जाती है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. आपके डिफरेंट टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उनका एक डेटा रखा जाता है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है. स्कूल में कितने एडमिशन्स हुए, कितने लोग गए स्कूल से, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है. तो ये सब जो है, ये सारा सब कुछ डेटा ही है. या जैसे कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है या कोई फर्म स्टैब्लिश होती है, तो वो अपना एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रॉफिट और लॉस मेजर करती है. तो ये सब जो है वो सारा हमारा डेटा ही है. तो अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में उसको डिफाइन करें तो डेटा इज डिफाइंड एज एनी न्यूमेरिकल फिगर, मीन्स which is represented in the form of numbers or fact which is collected for some definite purpose in view, means एक objective या एक aim के को mind में रखते हुए उसको जो collect किया जाए, that is a data. So we have seen that we are surrounded with large number of data, and due to which it becomes essential to extract the relevant information or important features of that data, जिससे कि हम एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंच पाएं या एक रीजनेबल डिसीजन हम ले पाएं उस डेटा की हेल्प से. इस पर्पस को पूरा करने के लिए वी स्टडी अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक है, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, STATUS, which means political state. Earlier, statistic was only the collection of data on the various aspects of life of people which was essential or useful for the political affairs या फिर which was useful for the state. But over the period of time, the scope of a statistic has broadened, and now we not only confine ourselves, or we not only confine a statistic to the collection of data, but also for the presentation of data, the summarization of data, the organization of data, the analysis of data, and on the basis of this analysis we try to come at certain conclusion and we try to make a reasonable decision. ठीक है. इसी तरह ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, जिसमें कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी भरपूर भरी हुई है, डेटा भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स का हर डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंस है. Nowadays, statistic is used in almost all the sectors, be it agriculture, economy, finance, transport, education, aviation, any sector.
statistics find its application. In fact, it is said that as long as there is data, there is no human walk of life where statistics cannot be applied. So, in short, we can say that statistic is a scientific method of collecting, summarizing, organizing, presenting and analyzing the data, and so as to reach at a valid conclusion and a reasonable decision on the basis of that analysis. Now we move on to the next topic, that is collection of data. See, there are two types of data on the basis of method of their collection: primary data and secondary data. Suppose you and two of your friends are given a task. Suppose you are asked to collect data on the height of 20 students of your class, and one of your student is asked to make a data on the number of absentees in each day in a class for a month, and your third friend is asked to collect data on the family members, the number of family members of your classmate. ओके, सो तीन लोगों को तीन टास्क असाइन किए गए हैं और उन्हें कहा गया है आप इन पे डेटा कलेक्ट करेंगे. सपोज व्हाट यू डू, आपको जो डेटा मिला है, आपको हाइट मेजर करनी है अपने क्लास के बच्चों की. सो यू गो टू ईच एंड एवरी 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड मेजर देयर हाइट. और आपके जो दोनों फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर नंबर ऑफ एब्सेंटीज भी होते हैं और उनके फैमिली मेंबर की डिटेल्स भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड से सिंपली वो डेटा ले आते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा कि दो मेथड थे कलेक्शन के. एक जहाँ पर आप एक एक बच्चे के पास गए एंड आपने उनसे डेटा लिया, और सेकेंड जहाँ पर आपके दोस्त गए और एक जहां पर रिकॉर्ड पहले से था वो डेटा वो पहले से ले आए. सो हमने तो आपका जो डेटा है दैट डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, बिकॉज आप वहां पर खुद गए और खुद से आपने एक डेफिनेट पर्पस को माइंड में रखते हुए डेटा कलेक्ट किया. और सेकेंड जो आपके दूसरे दो दोस्तों ने जो कलेक्ट किया है दैट डेटा इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, बिकॉज वो एक सेकेंडरी सोर्स से लाए डेटा जहां पर वो डेटा पहले से ही कलेक्ट हो रखा था, किसी पर्पस से पहले से ही वो कलेक्ट हो रखा था. ओके, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, टू मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. फर्स्ट इज बाय गोइंग थ्रू टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, and second is by taking the information or the data from any other source where the data has been recorded priorly for some purpose. We come to the next topic, that is presentation of data. See, the collected data in its original form is very complex and confusing, and it might also be very large in number. So we cannot get the correct idea from that mass of data. So therefore it becomes necessary कि उस data को हम condense कर दें, simplify कर दें, एक ऐसे form में present करें जिससे वो easily understood हो और उसके जो important features हैं उनको हम समझ सकें. जैसे suppose we are given marks of 10 students in mathematics test. ठीक है, ये 10 students के marks है mathematics में out of 100. तो ये जो original data होता है that is called raw data. इस डेटा से अभी हम कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या हो सकता है इसका इंपॉर्टेंट फीचर या इसमें क्या आइडिया देना चाह रहा है ये डेटा. तो हम क्या करते हैं, एक मेथड होता है डेटा को प्रेजेंट करने का कि वो जो डेटा है उसको हम किसी ऑर्डर में लिख दें, यानी कि उसको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. सपोज वी हैव अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, छोटे से बड़े हमने उसको अरेंज कर दिया है. सो नाउ अगर हमको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स and what is the maximum marks, then we can very easily say that 25 is the minimum and 95 is the maximum marks in mathematics test of 10 students in your class. ओके, सो इस ऐसे हमने देखा कि जब हमने इसको प्रेजेंट कर दिया तो डेटा बहुत ईजी हो गया और बहुत ईजिली हम उसको समझ पा रहे थे. ठीक, अब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस डेटा, सो रेंज क्या होती है? रेंज इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू from the minimum value of the data. So whenever you are asked to find the range of any data, just simply subtract the maximum value from the minimum value. So here the maximum value is 95 and 25 is the minimum value. Subtracting them we get 70. So 70 is the range of this data. See, sometimes what happens कि ये जो डेटा है वो बहुत लार्ज होता है नंबर में, तो उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करना ईजी नहीं होता है, वो बहुत टेडियस होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, उन केसेस के लिए वी यूज़ frequency distribution tables. Okay, suppose
कि हमारे पास 25 फैमिलीज़ का डेटा गिवन है, जहाँ पे बता रहे हैं कि उस एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. जैसे कि एक फैमिली में देयर आर 4 मेंबर्स, इन वन फैमिली देयर इज ओनली 1 मेंबर, इन वन फैमिली देयर इज ओनली 2 मेंबर्स. सो हमारे पास ऐसी 25 फैमिलीज़ का डेटा है. अब इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ही टेडियस हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी यूज़ अनदर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड. उसमें क्या करते हैं कि वी राइट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इन वन कॉलम and its frequency in the other column. Now let us first define frequency. Frequency क्या होता है? Frequency is the number of members that have the same measurement or that belongs to the same measurement group is called frequency. Clear? So यहाँ पर जैसे कि जितने numbers हैं, we are just simply writing the number of members. 0 is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and there is no any other number greater than 5 or any other number. So हमने जितने numbers थे उनको यहाँ पर लिख लिया. Now what we do? We count them. We see how many times 0 is occurring in the data. So 0 is occurring here 1, 2, 3, 4 and 5. So 0 is occurring 5 times in the data. So its frequency will be 5. Okay. Similarly, we see how many times 1 is occurring in the data. 1, see 1, 2, 3, 4 and 5. 1 is also occurring 5 times in the data, so the frequency of 1 is 5. Similarly, for the other data, we can find their frequency. So this tabular representation of the data is known as frequency distribution of the data. Okay, it is used when the number of observations are very large in number and arranging them in any order is not feasible. इन फ्रीक्वेंसीज को हम टैलीज में भी अरेंज कर सकते हैं. टैलीज क्या होता है? टैलीज आर जस्ट स्ट्राइप लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. हियर व्हाट वी डू, फॉर 1 वी राइट 1, टैलीज का हो जाएगा. फॉर 2 इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 2 strikes. For 3 it will be 3. For 4 it will be 4. Now for 5 what we do, we make 4 strikes and then cut it. This is a 5. Similarly, if you have to write 6, then it will be 1, 2, 3, 4, 5, cut it, it will be 5, and then this is 6. Similarly, if you have to write 11, so 11 के लिए आप कैसे लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. सिमिलर इसी तरीके से आप इनका फ्रीक्वेंसीज को टैलीज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस. If your sum of frequency is not coming out to be equal to the total number of observations, then it means that some error has occurred. आप वो उसको फाइंड करिए और उसको करेक्ट करना होता है. ये आंसर मैच करने का एक तरीका होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल नहीं है तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, आप वहाँ पर उसको सही कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पर हमने कोई ग्रुपिंग या कुछ भी नहीं किया है. नाउ सी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा होता है, तो उस केस में हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बना सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी दिखने में. तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास 60 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो गिवन है. ये 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास गिवन है. नाउ टू मेक दिस डेटा easily understandable, we try to present it in the form of groups. We divide it in the form of ग्रुप्स और इन द ग्रुप्स. यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स हैं जिसको पहले समझना चाहिए. द फर्स्ट टर्म इज क्लासेस और क्लास इंटरवल्स. सी, जो ग्रुप्स बनाते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, these all are called classes और class intervals. The second term is class size या फिर class width. See, class size क्या होता है, the number of observations that can come in this range or in this group is called the class size or the class width. Here 10 numbers can come in this range or in this class, so इसको हम कहेंगे, so class width इसकी हो जाएगी 10. Then another term is lower class limit and upper class limit. See,
if we have a class interval like this 0 to 9, यही हम ले रहे हैं, तो here 0 will be the lower class limit and 9 will be the upper class limit. ठीक है, ये दो टर्म्स होते हैं. अब यहाँ पर सी हमने क्या किया, वी हैव सीन कि जो नंबर्स हैं वो 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर. ठीक है, एंड वी कैन नॉट सी एनी नंबर इन द 3 डिजिट, मतलब 100 या 101, ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है. सो व्हाट वी डिड इज यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया. 0 से 9 का हमने एक ग्रुप बनाया जिसकी विड्थ थी 10. फिर एक नेक्स्ट ग्रुप बनाया 10 to 19 जिसकी विड्थ भी 10 है. सिमिलरली ऐसे करते करते हम एंड तक आ गए 90 to 99 जिसकी भी विड्थ 10 है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर लाइंग इन दिस रेंज फ्रॉम द डेटा. 0 से 9 के बीच में कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आएंगे डेटा से. सी फ्रॉम यहाँ से अगर हम देखें तो 06 विल बी इन दिस रेंज, देन और कोई नंबर नहीं है इसमें, और इसमें देखेंगे तो 09 विल ऑल्सो कम इन दिस रेंज. देन अगर और देखेंगे तो 03 विल कम, देन और अगर देखेंगे तो 00 विल कम इन दिस रेंज, एंड 4 इसमें भी एंड में कोई नंबर नहीं है. सो वी सी दैट देयर आर 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा दैट आर लाइंग इन दिस क्लास. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज 4. सिमिलरली वी सी कि 10 से 19 के बीच में देयर विल बी ओनली 3 नंबर्स फ्रॉम दिस डेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी. इसी तरीके से हम सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे. ठीक है, और फिर जैसे हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए टैलीज बनाई थी, सिमिलरली हम इसके लिए भी टैलीज बना लेंगे. और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी दैट शुड बी इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा. ओके, अब दो टर्म्स और इसमें डिफाइन करने होते हैं हमें. फर्स्ट इज द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड द अदर इज द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. ये जो हमने लिखे हैं इंटरवल्स, दीज आर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. यहाँ पर जब मैं लिख रही हूँ 0 to 9 एंड 10 to 19, देन इट मीन्स कि अगर ये जो अपर लिमिट है इसकी वो इस रेंज में इंक्लूडेड है, मतलब अगर डेटा में कहीं 9 आ रहा होगा तो हम उसको इस ग्रुप में डालेंगे. ठीक है, सिमिलरली 19 किसी डेटा में अगर डेटा में आ रहा होगा तो हम उसको इस ग्रुप में कंसीडर करेंगे. इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में वी राइट इट लाइक दिस 0 to 10, 10 to 20. सो यहाँ पे क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट ऑफ द डेटा इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज. ठीक है, 20 यहाँ पे अपर लिमिट है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल. तो अगर जैसे 10 आ रहा है कहीं किसी इसमें इस डेटा में 10 आ रहा है तो 10 हम इस ग्रुप में नहीं लिखेंगे, 0 से 10 के ग्रुप में हम नहीं लिखेंगे, वो 10 हम इस ग्रुप में लिखेंगे. तो यानी कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट जो होती है वो रेंज में, वो क्लास में इंक्लूड होती है, और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में अपर लिमिट उसमें इंक्लूड नहीं होती है. नाउ another form of presenting the data is in the form of graphs, okay, या pictures. See, if you are given numbers on one side of the paper and a picture on the other side of the paper, then it is obvious कि आप picture को सबसे पहले देखेंगे because pictures are appealing to eyes. इसी पर्पस से हम भी अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 1 picture is better than 1,000 words. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से जो डेटा होता है दैट बिकम्स सिंपल, impressive and attractive. It saves much of the time that would have been lost in studying numerical figures, and also it facilitates comparison. Okay, so graphically represent करने के लिए हमारे पास 3 graphs हैं. First is a bar graph, other is the histogram of uniform width and of varying width. Means हम 2 टाइप के histograms में पढ़ेंगे. And then is a frequency polygon. So हम पहले बात करते हैं bar graphs की. See, bar graph is a pictorial representation of the data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on x-axis, which depicts the variable, and the value of the variables are shown on the other axis, that is the y-axis, and the height of the bar depend on the value of the variable. Okay, ये होते हैं बार ग्राफ. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, कह रहे हैं कि देयर इज अ फैक्ट्री जिसके प्रोडक्शन हमें टन्स में गिवन है डिफरेंट ईयर्स के लिए. 1991 में उसका प्रोडक्शन 45 टन था, 1992 में 40 था, सिमिलरली 1995 में 50 था, 50 टन प्रोडक्शन उसका था. एंड नाउ इट इज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ.
सी जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसकी दो एक्सेसेस बनाएं एंड क्लियरली मेंशन कि विच एक्सेस इज विच। मीन्स अगर आपने ऐसे बनाया है, सो यू हैव टू मेंशन दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जनरली स्टूडेंट्स ये इग्नोर कर देते हैं जिससे उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो ये आपको बात माइंड में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज आप उसमें एरो जरूर बनाएं। ओके, एरो इज मस्ट जब भी आप कोई एक्सेस बनाएंगे और उनको नेमिंग करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो ईयर्स हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, और जो प्रोडक्शन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस बिकॉज इट इज अ वेरिएबल। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको यूनिट्स जरूर मेंशन करनी है ग्राफ में। जैसे कि जो एक सेल या एक ब्लॉक बना होता है ग्राफ में दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। सो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि वाई एक्सिस में जो 1 यूनिट है दैट इज इक्वल टू 10 टन्स। हम 10 के डिफरेंस में ले रहे हैं तो हमने कह दिया है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 टन्स। ऑलवेज स्पेसिफाई द यूनिट इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड फॉर एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, इतना डिफाइन करने के बाद व्हाट वी विल डू इज, अब यहाँ पे हमने ये सारे प्लेसिंग कर दी नंबर्स की। अब हम देखेंगे 1991 के लिए 45 वैल्यू आ रही, 45 टन है। तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक बनाएंगे ऑफ इक्वल विथ। मैंने यहाँ हाफ सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बनाए हैं, आप कितने भी विथ ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि विथ इनकी सेम होनी चाहिए। ओके, एंड स्पेसिंग भी इनके बीच में सेम होना चाहिए। तो 1991 के लिए हमने 45 के अक्रॉस हमने इरेक्ट कर दिया है एक बार। सिमिलरली और अदर ईयर्स के लिए भी हम ऐसे ही बार्स उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इरेक्ट कर देंगे। सो ये जो फिगर बन के आएगा दैट विल बी बार ग्राफ। नाउ आफ्टर बार ग्राफ देयर इज हिस्टोग्राम। सी इट इज अ फॉर्म of representation which is just like bar graph, but it is used for a continuous class intervals, जहाँ पर जो rectangles होते हैं they are erected with base equal to their class intervals, and जो height होती है that represents the frequency of the class intervals, or and each rectangle is joined with one another so as to give a continuous figure, and जो height होती है of the rectangle that is proportional to the frequencies। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम का। ओके, अब एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास क्लासेस गिवन है 30 to 35 which whose frequency is 1। सो ये क्लासेस हमें गिवन है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम दो एक्सेस बनाएंगे। वी विल मेक एरोज इन द एंड, वी विल मेंशन विच एक्सेस इज विच, और यहाँ पर क्लास को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड frequencies will be represented in the y-axis because these are the variable. Then we will define the units. यहाँ पर x-axis में 1 unit we have taken equal to 5. Okay, and for y-axis we have taken 1 unit equal to 2, 4 ऐसे जा रहा है। सो हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दी वाई एक्सिस के लिए 2, 4, 6 till 24, और यहाँ पर 30, 35, 40 ऐसे पूरा कर दिया है। यू हैव सीन दैट आई हैव मेड zigzag लाइन्स हियर। दीज रिप्रेजेंट कि यहाँ पर आगे और भी नंबर्स थे। ठीक है, या इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले 25, 20, 15 ऐसे पूरे नंबर्स आएंगे। बट ड्यू टू स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, स्कार्सिटी ऑफ स्पेस, वी कुडंट मेंशन इट हियर। सो इसलिए हमने यहाँ पे zigzag लाइन बना दी है जो कि बता रहा है कि अभी ये यहाँ पे ये 0 नहीं है, और भी नंबर्स थे यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी फॉर द क्लास इंटरवल 30 to 35, 30 to 35 हम ये पूरा एक लेंगे क्लास इंटरवल, एक ये 2 लाइन लेंगे एक पूरा ब्लॉक, और 1 के करस्पॉन्डिंग हाइट तक हम एक ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 35 to 40। सो 35 और 40 में हम 2 लाइन इरेक्ट करेंगे जिनकी लेंथ होगी 5 पर वो जाएगी, और ये 2 ब्लॉक हम बना देंगे। सिमिलरली 40 से 45 के लिए हम 2 लाइन इरेक्ट करेंगे जिनकी लेंथ होगी 22 पर, और उसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे और एक ब्लॉक बना देंगे। सिमिलरली हम पूरा फिगर बना देंगे। तो ये जो फिगर बन के आता है दैट इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। नाउ सी, हिस्टोग्राम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हिस्टोग्राम 2 कंडीशंस में यूज़ नहीं हो सकता। एक, जब जो क्लास विड्स हैं वो हमारी सेम ना हो। जैसे यहाँ पर 5 क्लास विथ है, किसी की अगर क्लास विथ 2 हो जाए, यानी कि हम 40 से 42 ले जाएं, तो यहाँ पे क्लास विथ में डिफरेंस आ जाएगा। तो उस केस में हम हिस्टोग्राम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और एक और केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं जब हमारे क्लास इंटरवल्स जो हैं वो इंक्लूसिव हों, यानी कि ऐसे 0 से 9, देन 10 to
whatever 19 ऐसे हमने ले लिया. So these are inclusive class intervals. For these class intervals also we cannot make histogram. तो हम इनके लिए कुछ adjustment हमें करने होते हैं इन cases के लिए. So one by one हमें ये दोनों cases देखेंगे. पहले बात करते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की. सपोज हमारे पास मार्क्स ये गिवन है एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज देयर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. सी यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो है दैट इज 0 to 20, इसकी विड्थ कितनी है 20 numbers are there. Then next class is 20 to 30, इसकी विड्थ कितनी है 10. 30 to 40 इसकी भी विड्थ 10. 40 to 50 इसकी भी 10 विड्थ है. 50 to 60 इसका भी क्लास साइज 10 है. 60 to 70 is also 10 and 70 to 30 is class size is 30. सो हमने देखा कि क्लास विथ जो है वो डिफर कर रही है. सो इस केस में वी कैन नॉट मेक हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पहले कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे. वो एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, सी हम पहले देखेंगे कि मिनिमम विथ क्या है पूरी क्लास में, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम विथ क्या है. सो मिनिमम विथ यहाँ पे विथ कौन कौन सी आ रही हैं 10, 20 and 30. So here minimum width is 10. So minimum width we have written. Now what we have to do, हमें फ्रीक्वेंसीज में एडजस्टमेंट करना होता है. तो हमने पहले ये सारी कोई चेंज नहीं किया, 0 to 20 ही लिखा है, 70 to 100 ही लिखा है. सारी फ्रीक्वेंसीज हमने एज इट इज़ लिख दी हैं. उसके बाद हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी हैं. अब हमने यहाँ पर विड्थ मेंशन कर दी है, इसकी क्लास की क्या है, इसकी 20 है, 10 है और सारी विड्थ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है. अब जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम चेंजेस करेंगे. 7/20 into the minimum width, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेंज. सो 7/20 into the minimum width that is 10 is 3.5. Similarly यहाँ पर हम करेंगे क्या, 10/10 into 10 is 10. यहाँ पर देखें तो 20 frequency divided by width of the class into minimum width is equal to the frequency that is 20. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 8 फ्रीक्वेंसी थी. सो 8 अपॉन विड्थ इज 30 इंटू मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी दैट इज 10. सो इसकी वैल्यू आ रही है 2.65. अब ये हम प्लॉट कर सकते हैं इसको यहाँ पर. लेकिन क्या होगा, हम यहाँ पर क्लास इंटरवल्स तो यही लेंगे बट फ्रीक्वेंसीज अब ये नहीं लेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज इनके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे. ओके, सो अब इस टेबल से हम प्लॉट करेंगे अपना हिस्टोग्राम. इसके लिए क्या करना होगा, वही सेम रूल, पहले दो एक्सेस डिफाइन करेंगे, उनको मेंशन करेंगे अलोंग विद एरोज. मार्क्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, नंबर्स को यहाँ पर. हमने कहा कि वाई एक्सेस में हम 1 यूनिट को 2 स्टूडेंट्स ले रहे हैं. ओके, बिकॉज दीज आर स्टूडेंट्स एंड 1 यूनिट इन एक्स एक्सेस इज इक्वल टू 10 मार्क्स. ओके, 0 से 10, 20, 30. अब देखो यहाँ पे है 0 से 20. सो अब हम एक लाइन इरेक्ट करेंगे फ्रॉम 0 and 20. 2 लाइन इरेक्ट करेंगे और उसकी लेंथ कितनी होगी 3.5. तो 3.5 पर हमने एक ऐसे रेक्टेंगल बना दिया. सिमिलरली अब 20 से 30 के लिए जाएंगे तो 20 पे 30 पे 2 लाइन इरेक्ट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 10 पे हमने ऐसे ही बना दिया. सिमिलरली बाकी करेंगे. अगर एंड वाला देखें तो 70 से 100 हम जाएंगे. 70 पे एक लाइन इरेक्ट करेंगे एंड 100 पे करेंगे और जिसकी लेंथ कितनी होगी या हाइट कितनी होगी 2.65 और उस पर हमने एक ऐसे लाइन बना दी. सो नाउ दिस इज द हिस्टोग्राम. ठीक है, फॉर दिस केस. Now the next case is of inclusive class intervals. Inclusive class intervals मतलब जैसे ये क्लास है, मार्क्स गिवन है, स्टूडेंट्स गिवन है, मार्क्स में कैसे गिवन है 1 से 10, then from 11 to 20, 21 to 30, these are inclusive class intervals. So in this case also we cannot make histogram. उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट है, आप जो लोअर लिमिट है एक क्लास इंटरवल की और जो अपर लिमिट है उन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं. फिर जो नंबर आता है उसको हम हर क्लास की लोअर लिमिट से माइनस करते हैं और अपर लिमिट से ऐड करते हैं. क्या कह रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला क्लास इंटरवल लिया 11 से 20, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 11 है और एक अपर लिमिट इस क्लास की कितनी होगी 10. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे. तो 11 - 10 इज 1. अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1/2 इज 0.5. अब व्हाट वी विल डू, वी विल सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट्स and add 0.5 to the upper limit. So 1 में अगर 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे so it will be 0.5 and 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो it will be 10.5. Similarly 11 में जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.5 so it will be 10.5 and 20 में ऐड करेंगे तो it will be 20.5. Similarly हम सारा बना लेंगे. तो अब हमने देखा कि रेंज हमारी कैसे आ गई, 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5. सिमिलरली ऐसी सारी, यानी कि इंक्लूसिव से हमने एक्सक्लूसिव बना दिया. तो ये मेथड होता है इंक्लूसिव इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव इंटरवल में कन्वर्ट करने का.
अब ये हमारे इंटरवल्स आ गए हैं। अब जैसे हम ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम अपना नॉर्मल, वैसे ही हम हर क्लास फ्रीक्वेंसीज और इंटरवल के अकॉर्डिंग हम इनको प्लॉट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट graphical representation is known as frequency polygon. See, frequency polygon is a line graph of class frequencies that are plotted against the mid values या mid point. अब यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है which is called mid point. उसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं या मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ द मीन ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो ये वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यू। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो ग्राफ होता है, क्या कौन सा ग्राफ, लाइन ग्राफ, जो कि प्लॉट होता है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज़ में। लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक डेटा गिवन है, ठीक है, हमने उसका एक हिस्टोग्राम बना लिया। नाउ व्हाट वी डू, वी फाइंड द सेंटर वैल्यू ऑफ ईच बार और ईच रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम। अब इनको व्हाट वी डू, वी जस्ट make a straight line and connect all these points. My line is not straight because I am not using scale. You always use scale, okay? So एक straight line से हम कनेक्ट करते हैं। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, 10.5 है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 0.5 और 10.5 जो लोअर, जो सबसे छोटी वाली क्लास इंटरवल है, उसके पहले भी हम सपोज करते हैं कि एक क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो क्या करते हैं, इसके पहले हम एक ऐसे हाफ पेस के डिस्टेंस पे एक डॉट बनाते हैं, उसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, एक पॉइंट से बनाते हैं। सिमिलरली एंड वाला जो है 40.5 टू 50.5, इसके बाद भी एक लिमिट होगी, उसका हम हाफ लेते हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो फिगर आता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया अंडर द हिस्टोग्राम। ओके, एक तो मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम, अनदर मेथड इज विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसके लिए क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक क्लास गिवन है और उसकी ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, क्लास है, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहाँ पर हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। सो मिड वैल्यू कैसे होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। सो 10 प्लस 0/2 इज 10/2 विच इज 5, ओके। सिमिलरली 20 प्लस 10 इज 30/2 इज 15। तो हमने सारी क्लास इंटरवल्स के लिए मिड वैल्यू निकाल ली। अब इन मिड वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, और फिर देखते कैसे हैं कि ये मिड वैल्यू है 5, तो 5 पे हम 5 यहाँ से लिया और यहाँ से 6 फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पे एक डॉट बना दिया। सिमिलरली 15 के अगेंस्ट हम 12 पे डॉट बना देंगे। ऐसे ही करके हम सारे डॉट्स बना देंगे और इनको हम लाइन से कनेक्ट कर देंगे। अभी जब कनेक्ट किया तो सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा, अभी ये दो लाइन्स नहीं आ रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके पहले मान लिया एक कोई इंटरवल था, तो उसका उस इंटरवल का हमने हाफ ले लिया और जो हाफ पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमने एक डॉट बना के इसको एक्सटेंड कर दी लाइन। सिमिलरली 55 के आगे एक इंटरवल आएगा यहाँ पर 60 में, और उसमें हम इसका हाफ लेंगे और यहाँ पे एक डॉट बना के उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देंगे डॉट लाइन को, तो ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व बन गया है। सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज measure of central tendency. See, till now we have studied about data, about statistic, collection of data, various presentation of data in the form of frequency distribution table, bar graph, histogram and frequency polygon. Now the question arises that in order to get the important features of the data, do we really need to go through whole data, or if we can calculate some measure from the data which will effectively describe the importance of whole set? So the answer is yes, this is possible. That is, we need not to go through whole of the data. हम एक ऐसा मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे डेटा से जो कि उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस मेजर इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा around which other values congregate. Okay, so there are three measures of central tendency. First is mean, which is also known as average. Another is median and mode. Now let us talk about mean.
See, suppose we are given values x1, x2, x3 till xn, where n is the number of observations. So mean कैसे define करते हैं? mean को हम लिखते हैं x bar. Okay, this is x bar. इसको हम x bar बोलते हैं. So mean क्या होता है? mean is defined as the ratio of sum of all the observations to the total number of observations. यानी कि x bar will be x1 plus x2 plus x3 सारे observations का addition divided by total number of observation. अब अगर ज़्यादा number of observations होंगे तो एक एक करके ये लिखना बहुत difficult हो जाएगा. तो इसके लिए हमें Greek symbol use करते हैं which is called sigma. This is sigma, जहाँ पर आई एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ से हम डिफाइन कर देते हैं कि उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है. तो यहाँ पर जो x1, x2, x3 गिवन है इसको हम xi ले लेंगे, जहाँ पर i जो है वो 1, 2 से n तक जाएगा. तो हम x बार को लिख सकते हैं सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi अपॉन n. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा. ना सपोज आपको अगर एक वैल्यू गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 तो तुमसे कह रहे हैं कि इसका मीन निकालिए. तो क्या करेंगे? हमने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए x1 इज 1, x2 इज 2, सारे हमने वैल्यूज को वेरिएबल एक अलॉट कर दिया है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. सो x बार क्या होता है? समेशन xi अपॉन n. सो सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इसका मीन आ गया 3. ठीक, एक ये मेथड है. एक और मेथड होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लार्ज नंबर, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर ऐसा कुछ आपको गिवन है तो जो मीन होगा वो कैसे निकालेंगे? मानिए ये x हैं, दीज आर xi's एंड दीज आर fi's. एक हमको गिवन है मार्क्स और उनके सारे फ्रीक्वेंसीज गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन में मार्क्स गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है. तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? fi इंटू एक्स आई, f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2, सारा इनका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, उसको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे आएगा? i गोइंग फ्रॉम 1 to n सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi xi अपॉन सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi. ठीक, ये फॉर्मूला होता है. अब जैसे इसी एग्जाम्पल पे हमको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? मार्क्स को हमने डिनोट किया xi से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने डिनोट किया fi से, इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया सारा. अब हम इसको ऐड कर देंगे तो वो समेशन fi xi होगा और इसको ऐड कर देंगे तो ये समेशन fi होगा. ठीक, अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मीडियन. मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स. मतलब वो वैल्यू ऑब्जर्वेशन की जो कि डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हो. तो अगर हमारे पास जैसे अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब जिसमें हमने रेंजेस या क्लास इंटरवल नहीं बनाए हैं, वो सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला जो केस है, अगर उसको लिया है ये वाला, ये अनग्रुप डेटा होता है. इस केस में हमको क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं हमने लिया है, एक सिंपल डेटा है हमारे पास. तो उसमें क्या करना होगा? पहले हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी हम उसको अरेंज कर देंगे और फिर देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो जो मीडियन होता है वो हम कहते हैं कि n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी दैट विल बी द मीडियन. ओके, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पर n इज 5 विच इज ऑड. राइट, सो यहाँ पर हमने इसको असेंडिंग में अरेंज कर लिया है. अब 5 है अगर हमारे पास तो हम कह रहे हैं कि n+1/2th यानी 5+1/2th यानी कि 6/2 विच इज थर्ड. तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा. थर्ड कौन सा होगा? 1, 2, 3. दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, सो वी से दैट 3 इज द मीडियन. ठीक, सिमिलरली अगर n आपका इवन है, मान लीजिए यहाँ पे ये 6 भी होता, यहाँ पर 6 भी है, सो क्या होता है कि तब इस केस में क्या होता है? मीडियन जो होता है वो n/2th और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का मीन होता है. ठीक, जैसे कि 6 है तो 6/2th ऑब्जर्वेशन इज थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1th ऑब्जर्वेशन इज 4 ऑब्जर्वेशन बाय 2. तो यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 3 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 4 है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से विच इज 7/2 दैट इज 3.5. फिर 3.5 हमारा इस केस के लिए मीडियन हो जाएगा. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक अच्छे से.
देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हुआ है, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे मीडियन फाइंड करिए। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है काउंट कर लिए, वो हमारे 9 आ रहे हैं। 9 इज ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होगा इसका, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो 5th ऑब्जर्वेशन होगा। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 25 आ रहा है 5th ऑब्जर्वेशन, सो दैट विल बी द मीडियन। 25 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। सिमिलरली अगर हमने ये इवन का केस लिया, हमको ये डेटा गिवन है, वी हैव अरेंज्ड इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वी सी दैट हियर n इज इक्वल टू 8 विच इज इवन। सो अब हम इसका मीडियन क्या होगा, n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। सो हमने इसका पूरा ये निकाल के देखा कि 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन का मीन। सो 4th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 2 3 4 विच इज 10 एंड 5th इज 12। सो इनका मीन ले लिया विच इज 11। सो 11 इज द मीडियन हियर। ओके, नेक्स्ट जो है फाइनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज मोड। मोड क्या होता है, मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सिंपलेस्ट है। तो यहाँ पे जैसे क्या कह रहे हैं कि अगर ये आपको डेटा गिवन है एंड यू आर आस्क्ड कि इसका मोड क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मोड क्या होगा, जो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेगा दैट विल बी मोड। यहाँ पे देखेंगे 2 आ रहा है, 1 और 2, 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, राइट। 7 देखेंगे तो 7 इज कमिंग ओनली 1 टाइम। 10 देखेंगे तो 10 1 2 3, 10 इज कमिंग 3 टाइम्स। 15 देखेंगे तो 15 इज कमिंग ओनली 1 टाइम। 17 इज कमिंग ओनली 1 टाइम। 8 इज कमिंग ओनली 1 टाइम। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसकी है, कितनी है, 3, और वो किसकी है, 10 की। सो वी से दैट 10 इज दी मोड। ये जो मोड होता है वो हमारे जितनी गारमेंट या शू इंडस्ट्रीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज वो जो साइज़ बनाते हैं किसी भी गारमेंट या शू का, वो मोड के बेसिस पे ही बनाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब जो साइज़ मैक्सिमम लोगों को फिट आता है वो जनरली उस साइज़ के शू या गारमेंट ज़्यादा बनाते हैं, तो मोड वहाँ पर बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है ना। ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड, इनके अपने अपने लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस हैं, जो कि और कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कब यूज़ करना है या वो किस टाइम सुपीरियर होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस तरीके का है। अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्रेजेंट है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब those values that differ significantly from all the other values of the data. For example, if we have data like 1, 7, 8, 9, 9. So here we see that these values do not differ significantly from one another. बहुत थोड़ा सा difference है इनमें, but one is differ significantly from number 7, 8 and all the other values. So we say that here 1 is the extreme value. Now see, if you have to find the mean of it, then mean of this data will be come 6.8. Okay, and if you have to find the median, so median of this data will be what? See, अगर 7, 8, 9, 9 है, so here n is 5. So 5 plus 1/2, that is third observation will be median. Okay, so median of this observation is 8. एक general thing मैं बताना चाहूँगी. See, if you have odd number of observations, then you need not to do all this calculation. What you simply have to see is, if you have arranged the data in ascending or descending order, then look for the middle value of the data. Whatever be the middle value of data, that will be the median. So in case इस केस में middle value is 8, so 8 will be the median. जल्दी से निकालने वाला मेथड है ये. ओके, या फिर कह लो कि चेक करने का कि आपका मीडियन सही है या नहीं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज अगर हम इसका मोड निकालें, सो 9 इज अकरिंग 2 times and the rest of the numbers are occurring only 1 time. So here mode is 9. So we see that the median and mode, that is 8 and 9, they are somewhat nearer to the values of the data, the maximum values of the data. ठीक है, but 6.8 is quite differing from 1. Okay, and all the other data also. So we see that कि मीन जो होता है दैट इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. सो इन केस वेयर in the data extreme value is present, mean is not a suitable measure of central tendency. In that case we make use of median and mode. ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक वन ऑफ द मेथड है जिससे कि हम डेटा के बारे में पता कर लगा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत से और मेथड्स होते हैं जो कि डेटा के फीचर्स को बताने के लिए और एक एनालिसिस करने के लिए, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए या डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होते हैं. वो मेथड्स आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. So this was all about chapter statistics of class 10th maths.
अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, जो कि बहुत सिंपल है। आप अगर जो मेथड और रूल हैं आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली वो आपसे सॉल्व हो जाएंगी। कुछ बेसिक चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, जैसे कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्सेस बनाना एंड उनको एरो में से डिनोट करना और यूनिट्स को डिफाइन करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ ग्राफ क्वेश्चन तो आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए, बिकॉज ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस एंड काम माइंड रिक्वायर होता है, जो कि स्टार्टिंग में होता है। आप एंड के लिए इस क्वेश्चन को मत रखिएगा। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत केयरफुली सॉल्व करें क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़िए ही। और आप जब कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो साइड बाय एक एक कैलकुलेशन के बाद आप चेक करते जाइए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन आपने सही से देखा है या नहीं, वैल्यूज आपने सही से उतारी है या नहीं क्वेश्चन से। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर माइंड में रखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक में, और आपका स्कोर बढ़ाने के लिए भी ये बहुत हेल्प कर सकता है। अब इस चैप्टर में तो इतना ही है। अब हायर क्लासेस में आपको और चीज़ें पता चलेंगी कि हम डेटा को और कैसे अच्छे से हैंडल करते हैं, और क्या क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं डेटा की जिसको हम समझ सकते हैं, और एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और उस डेटा की हेल्प से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या पास्ट का हम क्या जान सकते हैं, या उस डेटा से ही हम डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। सो अभी तो आप बोर्ड्स दीजिए, आगे कभी हो तो सोचिएगा इसके बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी ऑल द बेस्ट।